Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Welcome to Kashyap's Academy. Dear students, right now in coordinate geometry class 10. Class 10 के coordinate geometry में we have done about the section formula, midpoint formula and distance formula, the trisection, bisection concepts and some problems regarding how to find internal division, external division, ratio, k is to 1, if it is positive internal division, if it is negative external division, all the concepts have done. Now we are going to move, we are moving to see some problems regarding NCERT exampler. तो चलो उसके लिए चलते हैं आगे. The question is that find fourth vertex D. Question is that find fourth vertex D of parallelogram ABCD. Of parallelogram ABCD, where A is minus 2, 3, B is 6, 7 and C is 8, 3. ऐसे आपको दिए गए हैं and C is 8, 3. Find the fourth vertex. एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज दैट कि फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स. अब अभी तक ये प्रॉब्लम्स इन द फर्स्ट असाइनमेंट दैट वी हैव शेयर्ड अबाउट द 50 क्वेश्चंस. व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम रिगार्डिंग parallelogram, ABCD, rhombus, rectangle, whatever it may be, you are using distance formula. AB equal to AC, then BC equal to AB equal to DC, AB equal to AD equal to BC, like this you are using. But now we will use the concept of midpoint formula. How? Let us see here. So we will consider this as parallelogram ABCD. Let us consider this as parallelogram ABCD. Let AC and BD meet at P. ऐसे मैंने consider किया. So what is ये? Minus 2, 3. What is C? 8, 3. It is 6, 7. It is minus 2, 3. जो भी हो. We know what we know about the diagonals of a parallelogram. Diagonals of parallelogram bisect each other. ये हमें पता है. अब हमारे पास डी का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था. डी के लिए minus 2, 3 है ही नहीं हमारे पास. We'll consider D as x, y. Let D is x, y. तो अब मेरे पास क्या है? इसके आगे मैं 2 स्टेप्स करूंगा. Now P is midpoint of AC. A और C मुझे पता है ना? We know A and C. So I will consider P as a midpoint of AC and considering P as a midpoint of AC. Considering P as a midpoint of AC, वहां पे दिख रहा है. Considering P as midpoint of AC, considering P as midpoint of AC, P will be what? By midpoint formula. P will be what? By midpoint formula. Minus 2 plus 8 divided by 2 for this A and C, comma 3 plus 3 divided by 2. So what is P? By midpoint formula in AC. Minus 2 plus 8, 6 by 2 means 3, and here also 6 by 2 means 3. So what are the coordinates of P? 3, 3. Again, I will say, again, P is midpoint of BD. तो अब मैं क्या कंसीडर करूंगा? P is midpoint of BD. P is midpoint of BD. So what is P? B कौन है? 6 plus D के लिए x divided by 2. Yes or no? 6 plus x divided by 2, comma 7 plus y divided by 2. Hence what is P? X comma y is 6 plus x divided by 2 and 7 plus y divided by 2. Sorry, what is P? 3, 3. What is P? 3, 3 is 6 plus x divided by 2 and 7 plus y divided by 2. Hence 3 is equal to 6 plus x divided by 2 and 3 is equal to 7 plus y divided by 2. अब इसको हम अगर सॉल्व करें 2 3 are 6, 6 is equal to 6 plus x. Hence 6 is equal to 6 plus x and
2 3 are 7, 6 is equal to 7 plus y, hence x is equal to 0 and y is equal to -1. So d के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 0 and -1. तो यहां पे हमने यूज किया है मिड पॉइंट फॉर्मूला. मेक अ वीडियो पॉज एंड राइट इट. अब आपके पास सवाल है, if p is a point in bracket 2 comma 1, if p is a point in bracket 2 comma 1 lies on segment AB. अब p एक पॉइंट है, सेगमेंट AB पे है p, या तो ये केस होगी या फिर AB के आगे यहां पे p होगा, या फिर पहले p होगा आगे AB होगा. मतलब a डैश p डैश b हो सकता है, a डैश b डैश p हो सकता है, या फिर p डैश a डैश b हो सकता है. आउट ऑफ दिस इज द एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन. आउट ऑफ दिस आपको बताना है कि इसमें से सच क्या है. तो आप क्या करोगे, जैसे हमने कल तक किए थे, लेट P डिवाइड्स AB इन रेशो K इज टू 1 कंसीडर करके मुझे ये निकाल के बताइए, और मैं फिर उसके बाद आगे क्या होने वाला है ये आपको बाद में बताऊंगा. पहले AP बाय PB K इज टू 1 कंसीडर करके K की वैल्यू बताइए. आफ्टर मेक अ वीडियो पॉज, इसके बाद मैं K की वैल्यू बताऊंगा और आपको सॉल्यूशन दूंगा कि क्या हो रहा है. बट यू विल ट्राई टू सॉल्व द केस वैल्यू. मेक अ वीडियो पॉज. सो नाउ एज आई हैव ऑर्डर्ड यू और आई हैव सेड यू कि फाइंड आउट इट इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, कि मैं जो बता रहा था आपको, आपने अगर सॉल्व किया होगा इसको तो K विल बी -1/3. इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, वो नो इश्यूज है, वो तो बहुत सिंपल है, वो भी बताऊंगा मैं आपको. बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज द इंटरनल, व्हाट इज द डिवीजन, व्हाट इज द रेशियो, और फिर पूछा जाता है कि इनमें से क्या सही है, वेदर AP इज इक्वल टू 3PB. तो उसके बाद फिर एक बार सेक्शन फॉर्मूला यूज करने के बाद फिर डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों यूज करें, तो वो भी इशू है. तो पहले ये इशू पहले सॉल्व कर लेते हैं कि यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला इसका आंसर हम कैसे दें. वंस यू सॉल्व यू विल फाइंड आउट K इज इक्वल टू -1/3. K -1/3 है, मतलब P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन रेशियो, एक्सटर्नली इन रेशियो 1:3. मतलब आपका AP बाय PB 1/3 आएगा. इसका मतलब क्या होगा, अगर ये PX है तो PB क्या होगा 3x. अगर APX है तो PB क्या होगा 3x. मतलब मैं अगर ये कंसीडर करूं कि ये P मैं अगर यहां पे लेता हूं PAB, अगर दिस इज x, दिस AB टोटल इज 3x, दिस टोटल AB इज 3x. या फिर ऐसे हो सकता है कि ये P यहां पे हो सकता है, ये यहां पे हो सकता है, B यहां पे हो सकता है, B डैश A डैश P डैश A डैश B या फिर B डैश A डैश P. तो P अगर एक्सटर्नल है B A को, तो वो भी केस हो सकती है. आप कहोगे सर A अगर B अगर मैंने यहां पे लिया, मतलब P डैश B डैश ये अगर लेने जाते हो आप, यहां पे दो केस होते हैं, या तो P डैश A डैश B या फिर B डैश A डैश P डैश A डैश B या फिर B डैश A डैश B, P डैश B डैश B या फिर A डैश B डैश P. मतलब अगर आप A B P करते हो यहां पे, तो PB 3x बनेगा सपोज, तो AB x बनेगा. नो देन APX बनेगा सपोज, दिस AP टोटल इज x, देन दिस PB इज 3x. ये तो बन नहीं सकता ना, दिस कांट बी पॉसिबल. आपको चेक करना पड़ता है रेशो में कि वो होगा या ये होगा, इधर P डैश A डैश B होगा या फिर P डैश B डैश ये होगा. तो ये आपको चेक करना पड़ता है रेशो निकलने के बाद. नॉर्मली जितनी प्रैक्टिस करोगे 1:3 है, तो आपको ये समझ में आता है AP बाय PB 1:3, तो PA एंड AB लेना है, x एंड 3x. सो दिस टोटल विल बी 4x. ये x है, वो तो एप्लीकेबल नहीं होगा, इसको तो हम कैंसिल करेंगे. मैं ये जो बोल रहा हूं ना, ये चीजें ये केस स्टडीज के लिए और MCQs के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरी है. आगे जाकर के आप 11th-12th में लोकस, स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे ना, तो ये सब जरूरी है उस वक्त. तो इसलिए ये सोच बढ़ाने का काम कर रहे हैं हम अभी. APX AB 3x इस रेशो के हिसाब से, तो टोटल PB 4x बनेगा. तो कौन बैठेगा यहाँ पे, AP इक्वल टू 1/3 AB आएगा क्या, नहीं, AP इक्वल टू 1/3 PB आएगा, AB नहीं आएगा. AP इक्वल टू 1/3 AB नहीं आएगा, 1/3 PB आएगा. चलो ये खारिज. AP इक्वल टू PB तो पॉसिबल नहीं मिड पॉइंट फॉर्मूला. PB इक्वल टू 1/3 AB नहीं, PB अगर वहां जाता है तो 3AP आएगा. नो, AP इक्वल टू हाफ ऑफ AB, APX है,
total AB 3x है. Yes, what will be happen? What is PB? Sorry. What is PB? PB is 3x. Sorry. What is total PB? PB is 3x. What is AB? 2x. ये टोटल PB कितना आएगा? 3x. ये AB कितना आएगा? 2x. और ये PA 3x है. So ये ट्वाइस है. PA इक्वल टू ट्वाइस है. तो ये पॉसिबल हो जाता है. बट एट द टाइम ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन व्हाट यू विल डू? एट द टाइम ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन आता है तो सिंपल वे में आप क्या करोगे? AP AB PB AB AP AB PB. AP निकालो, AB निकालो, PB निकालो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. AP AB PB निकालो एंड देन फाइंड आउट इन चारों में से कौन सा बैठ जाता है. वट एवर वी डिड राइट नाउ दैट इज जस्ट फॉर द आइडिया, आपकी सेक्शन फॉर्मूला की डेवलप हो जाए इसके लिए. बट फॉर द बोर्ड एग्जाम यू विल फाइंड आउट AP PB एंड PB. Yes. If P in bracket a by 3 comma 4, P is midpoint of QR, hence by midpoint formula. P is midpoint of QR. एग्जाम के वक्त आप P QR लिखोगे जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसके बाद लिखोगे by midpoint formula. P will be what? -6 plus -2 divided by 2 comma 5 plus 3 divided by 2. Hence, what is P already given? A by 3 comma 4 is nothing but -8 by 2 comma 4. So which implies A by 3 is equal to -8 by 2. So A is equal to -4 multiplied by 3, which is -12. Clearly, the answer is clear. A will be -12. Yes, any doubt? Make a video pause, write it down.